Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Machine Design and CAD 1. In today's lecture, we will be discussing the stresses. Some portion of the stresses have been covered in the previous class, and today we'll focus on the bearing stresses or the crushing stresses inside the machine parts. So, about this lecture, some of the terms I have told you in the previous lecture, and some of the terms are new. So, before coming to the main lecture or before going to the bearing stresses, let us recall the previous terms. So basically stresses in machine parts are generated by following one of the following reasons. For example, when you transmit energy, there would be the generation of the stresses inside the machine parts. When there is frictional resistance involved, or in case of the weight of the machine is involved, there will be some kind of vibration due to which the stresses are generated. Inertia of the reciprocating parts also generate the stresses in the machine. Change of the temperature also generate the stresses, and the lack of the balancing. These are the main reasons due to which the stresses are generated in machine parts when we talk about the moving machinery. Like an IC engine, internal combustion engine, it's a car engine or it's a bike engine or it's some kind of another engine. In that case, there would be generation of the stresses. When there are some kind of movable parts or there is a relative movement between the parts, certainly there will be the generation of the stresses. So this was covered in the last lecture. We have covered the load, the term like load, what is meant by the stress. Here the formula is given: stress is equals to force acting on a body divided by cross sectional area. Then in previous lecture we talk about the compressive stresses and the tangential stresses. Then strain is basically the change in length of the body. These were the terms. Then moving on to the next was the compressive stresses and the tensile stresses, and these were the examples that we have solved in the last lecture. Here this is a main example in which there was a dia of the piston rod that was meant to be designed from us, so we have designed that in the last lecture. Then we talk about the shear stresses, how these stresses are generated and how the shear strain is generated and what are their effects. And there were some examples that were related to this, like a punching machine. This kind of technique is used for the design of the punching machine, we have solved in the last lecture. So our today's lecture is basically focused upon the bearing stresses. So now we will discuss the bearing stresses. A localized compressive stress at the surface of contact between two members of a machine part that are relatively at rest is known as the bearing stress or the crushing stress. जब कभी भी आपकी मशीन के दो पार्ट्स जो हैं जो रेस्ट के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द अपर प्लेट एंड दिस इज द बॉटम प्लेट एंड दीज टू प्लेट्स आर ज्वाइंट बाय अ रिवेट, ये रिवेट ज्वाइंट इसके अंदर लगा हुआ। तो जब टेंसाइल फोर्सेज लग रही हैं, अगर आप अपर प्लेट को देखें तो उसको लेफ्ट की तरफ खींच रही है और बॉटम को देखेंगे तो वो राइट की तरफ उसको खींच रही है। दीज आर बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो इन टेंसाइल फोर्सेस की वजह से रिवेट के ऊपर जो है एक लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। जब आप इन दोनों प्लेट्स को पुल अपार्ट करेंगे या दोनों को खींचने की कोशिश करेंगे तो उसके नतीजे में ये प्लेट जो है ये क्रश करने की कोशिश करेंगी आपकी इस रिवेट को। दैट्स व्हाई द नेम क्रशिंग स्ट्रेस हैव आल्सो बीन गिवन टू दिस बेयरिंग स्ट्रेस। और ये जो आपके पास पार्ट है जिसको आपने जोड़ा हुआ दूसरे पार्ट के साथ, यानी कि ये जो आपकी रिवेट है, इसके इर्द गिर्द जो है ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं जो इसको क्रश करने की कोशिश करते हैं। सो दीज स्ट्रेसेस आर बेसिकली नोन एज द बेयरिंग स्ट्रेसेस एंड दीज आर द लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। अगर हम प्लेट की एज अ होल बात करें तो प्लेट के ऊपर आपके पास टेंसाइल फोर्स लग रही है, लेकिन उस फोर्स के नतीजे में एक लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है जहां पे हमने ज्वाइन किया है अपनी प्लेट को अपनी रिवेट के साथ।
अगर यहाँ पे हमारे पास रिवेट नहीं होगी तो परमानेंट जॉइंट होगा, तो वो हमारे पास क्या हो सकता है, इट वुड बी अ वेल्ड बिट। तो ये उस वेल्ड बिट के दरमियान में जो स्ट्रेसेस उसके अपार्ट या आप कह लें कि उसके इर्द गिर्द जनरेट हो रहे होंगे, that would be the bearing stresses, and they will try to crush the main rivet or the weld joint. The bearing stresses is taken into account in the design of the rivet joint, cotter joints and knuckle joints. तो जहाँ पे आपके पास रिवेट से आपने दो प्लेट्स को जोड़ा हुआ है, या आपने किसी कॉटर पिन की मदद से दो प्लेट्स को जोड़ा हुआ है, या एक नकल आप जो है आपने इंसर्ट किया हुआ है बिटवीन टू प्लेट्स, तो उस केस में जब कभी भी आपके पास इस तरह की फोर्सेस की पोजीशन आएगी, हमेशा आपके पास बेरिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगे उस लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर। ये बेसिकली वो लोकलाइज्ड एरिया है। लेट अस कंसीडर अ रिवेटेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू अ लोड P। ये लोड जो है ये आपके पास एक्सटेंसिव लोड या टेंसाइल लोड कह लें, इज शोन इन द फिगर। इन सच अ केस द बेरिंग स्ट्रेस और द क्रशिंग स्ट्रेस जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो वो क्या होगा, सिग्मा बी, इसको बेरिंग अगर आपने कहना है, या सिग्मा आप इसको सी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्रशिंग स्ट्रेस, दैट वुड बी इक्वल्स टू लोड अप्लाइड दिस वन पी डिवाइडेड बाय पाई डी एन। यहाँ पे पाई जो है दैट इज सॉरी डी जो है डी टी एन, सॉरी पाई नहीं है इसके अंदर, डी टी एन। सो डी जो है इसमें दैट इज बेसिकली डाया ऑफ द रिवेट। जो भी आपके पास रिवेट होगी उसका जो भी स्पेसिफिक डाया होगा आप वो यहाँ पे पुट कर दें। हियर टी इज बेसिकली द थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो आपकी प्लेट की जो भी थिकनेस होगी, यूजुअली आपकी टॉप और बॉटम प्लेट की थिकनेस जो है वो सेम रखी जाती है। अगर आपके पास इनकी थिकनेस वेरी करेंगी तो जिसकी थिकनेस कम होगी वो कम लोड बेयर कर सकेगी और जल्दी टूट जाएगी, और जॉइंट से पहले ही आपका जो है ये वाला जो प्लेट है ये टूट जाएगी। तो इसलिए हम किसी भी प्लेट का डाया ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का थिकनेस ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का यूजुअली सेम रखा जाता है डिज़ाइन के केस में। हेयर एन इज़ द नंबर ऑफ रिवर्ट्स पर पिच लेंथ। तो जितने नंबर ऑफ रिवर्ट्स को आप एग्जामिन करना चाह रहे हैं या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली एन जो है वो नंबर आ जाएगा। आप एक के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, वेल एंड गुड। एक से ज़्यादा के लिए डिज़ाइन करें तो जितने नंबर ऑफ रिवेट्स होंगे आप उनको n की जगह पे पुट कर दें। यहाँ पे 2 होगा तो 2 लिख देंगे, 3 होगा तो 3 लिख देंगे, 4 होगा तो 4 लिख देंगे। सो दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बेरिंग स्ट्रेस। सो अगेन आई एम समराइजिंग द बेरिंग स्ट्रेसेस। बेरिंग स्ट्रेसेस के केस में हमारे पास है क्या, बेरिंग स्ट्रेस के केस में हमारे पास ये है कि देयर इज अ पुल फोर्स और देयर इज अ टेंसाइल फोर्स, और उस फोर्स की वजह से एक लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है अराउंड द रिवेट। सो दैट स्ट्रेस इज बेसिकली ट्राइंग टू क्रश ऑफ द रिवेट। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज क्रशिंग और द बेरिंग स्ट्रेस। It may be noted that the local compression which exerts at the surface of contact between two members of a machine part that are in relative motion is called bearing pressure. अभी जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे तो उस केस में हमने कहा था कि अगर दो पार्ट्स एट रेस्ट हैं और फिर उनके ऊपर जो है कोई फोर्स लग रही है, तो उस केस में जो स्ट्रेस लोकलाइज जनरेट हो रहा है दैट स्ट्रेस इज नोन एज बेरिंग स्ट्रेस। लेकिन अगर दो पार्ट्स मोशन में हैं, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स, इन दैट केस उसके सरफेस के ऊपर या कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको कहा जाता है बेरिंग प्रेशर। This term is commonly used in the design of general support in the bearing pins for lever crank clutch lining। अब इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि बेरिंग्स वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपने शाफ्ट को घुमाना होता है, यानी कि आपने रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करनी है या पावर ट्रांसमिशन के लिए यू यूज़ बेरिंग्स के उसके अंदर जो है वो चीज़ घूमती रहे। तो यूजुअली बेरिंग की एक फिक्स हब होती है और उसके अंदर एक रोटेटिंग आपके पास हुक या रिंग होता है, ठीक है। तो जब आप उसके अंदर शाफ्ट को जो है इंसर्ट कर देते हैं, शाफ्ट को यूजुअली इन द डिजाइन लैंग्वेज इट इज नोन एज जर्नल, ठीक है। तो जब आपने उसके अंदर शाफ्ट इंसर्ट की हुई है, बेरिंग आपका एक स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है, अब दोनों के अंदर एक रिलेटिव मोशन है बिटवीन द पार्ट्स। अगर आपके पास बॉल बेरिंग है तो बॉल्स घूम रही हैं और उनके घूमने की वजह से शाफ्ट या जर्नल आपका घूम रहा है।
अगर आपके पास रोलर बेरिंग है तो बॉल्स की जगह पे आपके पास रोलर्स हैं, वो घूम रहे हैं और शाफ्ट घूम रही है, और बेसिक जो उसका हब है आउटर साइड का वो स्टेशनरी है। अब एक रिलेटिव मोशन जनरेट हो रही है। इन दैट केस वो जो आपके पास जर्नल है या शाफ्ट है, वहाँ पे एक लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है, सॉरी प्रेशर जनरेट होता है, जिसको बेरिंग प्रेशर का नाम दिया जाता है। तो इस तरह की स्कीमेटिक यूजुअली आपको देखने में मिलेगी क्लच लाइनिंग्स के अंदर, गाड़ी की क्रैंक पिंस के अंदर, या आपके पास लीवर्स के अंदर जो है, जहाँ पे आपके पास शाफ्ट की रिलेटिव मोशन है, पावर शाफ्ट है आपके पास, वो घूम रही है, उसकी वजह से जो है ये जनरेट होगा आपके पास एक लोकलाइज प्रेशर। सिंस द एक्चुअल बेरिंग प्रेशर इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन, जो एक्चुअल इंस्टेंटेनियस प्रेशर जो है जनरेट हो रहा होता है एट दैट मोमेंट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन। So that's why the average bearing pressure is usually calculated. तो हम क्या करते हैं कि अपनी डिज़ाइन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक एवरेज प्रेशर जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। अब एवरेज वैल्यू कैसे आती है? ओवर द टाइम हम डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं, उसके बाद उनको सम करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाती है। Therefore, the average pressure is usually calculated by dividing the load। अब ये पी बी जो है ये आपके पास बेरिंग प्रेशर है, दैट इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। अब एरिया इस केस में क्या है, आप लेंथ लेंगे, आपके पास जो फिक्स बेरिंग की लेंथ है, मल्टीप्लाइड बाय द डाया ऑफ द जर्नल। ये वही डाया होगा जो आपके बेरिंग का डाया है ना, डाया सेम होगा तो तभी ये इसके अंदर इंसर्ट होगी। सो पी बी इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया इज इक्वल टू एल डी। तो इसी से रिलेटेड जो है एक एग्जांपल को, डिज़ाइन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं कि आपको अगर कहा जाए डिज़ाइन के क्वेश्चन के अंदर कि आपने बेरिंग स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करने हैं या कोई और पैरामीटर दैट इज रिलेटेड विद दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन प्रॉब्लम, सो इन दैट केस हाउ यू विल सॉल्व और हाउ यू विल डिज़ाइन है। सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हेयर देर आर बेसिकली टू प्लेट्स, और यहाँ पे दो प्लेट्स को जोड़ा गया है जिनके ऊपर दो पुल फोर्सेज जो है वो एक्सर्ट हो रही हैं, और यहाँ पे मेरे पास दो ही रिवर्ट्स हैं ऑफ द सेम डाया, प्लेट्स की थिकनेस भी दोनों की सेम है। अब डेटा की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डेटा? टू प्लेट्स ऑफ 16 mm थिक, here the thickness T is equal to 16 mm, are joined by a double rivet lap joint। तो उसने आपको बताया कि डबल है, ओके इसका मतलब है कि the value of n is 2। Rivets are 25 mm in diameter, so the dia of the rivet is 25 mm। Find the crushing stress induced between the plates। Now the value of the bearing stress is to be determined। यानी कि आपने एक प्लेट को दो रिवेट से ज्वाइन किया है, आपके पास जो अवेलेबल थिकनेस थी इनसाइड द प्लांट और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो प्लेट्स आपके पास फील्ड में अवेलेबल थी उनकी थिकनेस आपको नोन थी। आपके पास आपके वेयर हाउस में रिवेट्स मौजूद थे जिनका डाया आपको पता था। अब ये प्लेट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे इन रिवेट से, और आप इसके ऊपर कोई पुल फोर्सेस लगा रहे हैं और आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है इसकी फॉर बेरिंग और द क्रशिंग स्ट्रेसेस, तो उसको डिज़ाइन करना इज़ क्वाइट ईजी। वो हमें बता रहा है जी द मैक्सिमम अलाउएबल टेंसाइल लोड जो है दैट इज़ 48 मेगा पैस्कल्स, किलो पैस्कल्स है शायद, ये सारी इसको देख लेते हैं, दोबारा इसकी तरफ चलते हैं। जी किलो न्यूटन, सो द वैल्यू इज इन किलो न्यूटन्स। नाउ हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेस क्या होता है? P डिवाइडेड बाय डी टी एन। P हमारे पास क्या होता है? वैल्यू ऑफ द लोड, दैट इज 48 किलो न्यूटन। इसको कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन में तो ये हमारे पास 48 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डाया ऑफ द रिवेट दैट वाज गिवन 25 mm। इसको भी आप मीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर लें, या उसने एंड वैल्यू न्यूटन पर mm में दी हुई है तो मत करें आप, दैट इज योर चॉइस। आपने लेकिन सिस्टम एक ही रखना डिज़ाइन के केस में। आप मिलीमीटर्स के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं, मिलीमीटर्स में रखें सारे पैरामीटर, मीटर के अंदर करें मीटर में करें। कोशिश करें कि आप अगर यहाँ पे न्यूटन ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आप मीटर के अंदर करें कैलकुलेशन। तो डाया आ जाएगा आपके पास, थिकनेस आ जाएगी और नंबर ऑफ रिवेट्स, here the number is 2। आप इन सारे को डिवाइड कर देंगे एंड here is the value 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In the second question, a journal of 25 mm in diameter is supported in a sliding bearing has a maximum end reaction of 2500 newtons। यहाँ पे एक जर्नल आपको दिखाया गया है, जो मैक्सिमम जो प्रेशर है आपके पास वो बेयर कर सकता है, दैट वैल्यू इज 2500 न्यूटन। और जो उसका डाया है जर्नल का, यानी कि जो शाफ्ट का आपके पास डाया है, दैट इज 25। Assuming an allowable bearing pressure of 5 Newton per mm square, अब जो बेयरिंग प्रेशर की वैल्यू है, यानी कि पी की जो वैल्यू है वो भी आपको गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइडिंग बेयरिंग, तो जो आपके पास स्लाइडिंग बेयरिंग की लेंथ है दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सॉरी, अभी मैं बताता हूँ आपको इस डिज़ाइन प्रॉब्लम के अंदर क्या रहा है वो आपसे ये सारी चीज़ें दे के ये वाली लेंथ जो है बेसिकली बेयरिंग की ये पूछ रहा है। तो इस केस में वो आपको एक ऐसा बेयरिंग डिज़ाइन करने को कह रहा है जिसके उसको सारे पैरामीटर नोन है, लेकिन उसकी लेंथ नहीं पता कि कितनी लेंथ तक आपने शाफ्ट को सपोर्ट करना है, तो वो कितना जो लोड है वो बेयर कर जाए, तो वो हम उसको डिज़ाइन करके देंगे। हेयर द गिवन पैरामीटर्स आर डाया इज गिवन, लोड इज गिवन, पीबी इज गिवन। सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया की जो वैल्यू होती है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द डाया। हेयर हमें डाई की वैल्यू लेंथ की वैल्यू जो है वो चाहिए, तो लेंथ को एज इट इज रहने दें, डाया हमें गिवन है तो दैट इज 25 L mm स्क्वायर। नाउ द बेयरिंग प्रेशर इज PB इज इक्वल्स टू, अब बेयरिंग प्रेशर का फार्मूला अभी हमने देखा है कि यहाँ पे बेयरिंग प्रेशर का क्या फार्मूला था कि PB इज इक्वल्स टू P ओवर LD। लोड की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, दैट इज 2500। उसके बाद एरिया है 25 इंटू एल। बेयरिंग प्रेशर की वैल्यू भी हमें गिवन है दैट इज 5। सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ से हम लेंथ ऑफ द बेयरिंग जो है वो निकालेंगे। हियर द लेंथ इज 20 mm, तो ये जो आपके पास बेयरिंग आएगा इसकी जो लेंथ होगी दैट इज 20 मिलीमीटर। आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक और फर्दर थोड़ा सा मुश्किल सवाल की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमें बताया गया है कि एक मशीन है, उसका एक पैरामीटर हमने डिज़ाइन करना है। उससे पहले हमने एक पार्ट डिज़ाइन किया है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द डिज़ाइन ऑफ द मशीन। A hydraulic press exerts a total load of 3.5 मेगा न्यूटन्स। एक आपके पास हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन है जिससे आप कोई भी चीज़ जो है वो प्रेस कर रहे हैं, आप पेपर्स प्रेस कर रहे हैं, कपड़ों को प्रेस कर रहे हैं, या आपके पास कोई और आइटम्स है जिनको आप कंप्रेस कर रहे हैं फॉर द पैकेजिंग पर्पस या किसी और पर्पस के लिए, ठीक है। तो वो एक लोड जनरेट करती है, उसकी जो मैक्सिमम या टोटल वैल्यू है दैट इज 3.5 मेगा न्यूटन। दिस लोड इज कैरीड बाय 2 स्टील रॉड्स। तो यूजुअली जब ये लोड अप्लाई होता है तो अपर साइड पे आपने प्रेसिंग मशीन के ऊपर देखा होगा कि क्या होता है कि आपके पास एक लोड एलिमेंट होता है जो 2 रॉड्स के ऊपर फिक्स किया होता है। आप उसको ऊपर करते हैं, नीचे वो चीज़ रखते हैं जिसको आपने प्रेस करना होता है और उसको उसके ऊपर फेंक देते हैं। तो ये उन स्टील रॉड्स की बात हो रही है, सपोर्टिंग रॉड सपोर्टिंग द अपर हेड ऑफ द प्रेस। इफ द सेफ स्ट्रेस, अब सेफ स्ट्रेस की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू उसने हमें दी है सिग्मा टी इज इक्वल टू 85 मेगा पैस्कल्स एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील इज 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमसे डिमांड्स क्या है, डिज़ाइन हमने क्या करना है कि फाइंड द डाया ऑफ द रॉड। हमने रॉड्स का वो डायामीटर फाइंड आउट करना है जिस रॉड्स के डाय के ऊपर इतना लोड जो है वो सपोर्ट हो सके, एंड एक्सटेंशन इन ईच रॉड। और हमने जब स्ट्रेस जनरेट होता है तो उसके नतीजे में स्ट्रेन भी जनरेट होता है, तो वो स्ट्रेन की वैल्यू या चेंज इन लेंथ निकालनी है कि इतना लोड पड़ने से चेंज ऑफ लेंथ कितना होगा। अगर आपके पास जो लेंथ है ओरिजिनल वो हमने ली है 2.5 मीटर्स, तो इस डिज़ाइन के केस में मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आर नोन। देयर आर ओनली 2 पैरामीटर्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस डिज़ाइन प्रॉब्लम। फर्स्ट is the diameter of that supporting rods, and second one कि स्ट्रेन या एक्सटेंशन क्या है, कि चेंज इन लेंथ कितनी आएगी, इतना जब उसके ऊपर प्रेशर जो है 3.5 मेगा न्यूटन इज अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ द प्रेशर। अब देखते हैं हो क्या रहा है।
और उससे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि डाया ऑफ द रॉड एरिया से निकलेगा, एरिया इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। हियर द वैल्यू ऑफ डी इज बेसिकली अननोन, डी हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 4 जो भी वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डी स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि सिंस द लोड इज कैरिड बाय 2 रॉड्स, जो लोड आपके पास 3.5 मेगा न्यूटन्स का था वो एक ही रॉड के ऊपर तो सपोर्टेड नहीं था, वो 2 रॉड्स पे था। तो हम जो टोटल लोड की वैल्यू है उसको हाफ कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम ये जो डायामीटर फाइंड आउट कर रहे हैं ये किसी एक रॉड के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम बेसिकली आइसोलेट कर रहे हैं और अज्यूम ये कर रहे हैं कि जो टोटल लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन 2 रॉड्स। तो हेयर जो अब हमने P यूज करना है उसको हम एक नई टर्म दे रहे हैं लोड को, उसको कह रहे हैं हम वो P1 है, क्योंकि वो फर्स्ट रॉड के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप इसको 2 भी रख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। P1 is equals to P over 2। Here P is basically the total load, that is 3.5। आप उसको डिवाइड कर देंगे। Here is the half value 1.75 into 10 raised to power 6 newtons। Now अब हमारे पास स्ट्रेस का क्या फार्मूला होता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड ओवर एरिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास लोड की वैल्यू आ गई है, या फोर्स की वैल्यू आ गई है 1.75 into 10 raised to power 3 सिग्मा टी इंटू एरिया। सिग्मा टी की वैल्यू हमारे पास ये गिवन थी, स्ट्रेस की जो वैल्यू थी सेफ स्ट्रेसेस की वो गिवन थी, दैट वाज 85 इंटू एरिया। एरिया की क्या वैल्यू थी, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, जो हमारे पास बना 0.7854 डी स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म के अंदर जो है वो डी स्क्वायर अननोन है, हम यहाँ से डी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और उसका अंडर रूट लेके हेयर वुड बी द डाया ऑफ द रॉड जो डिजायर्ड हमसे है। सो द वैल्यू ऑफ द डाया इज नाउ बेसिकली 162 मिलीमीटर। ये हमारे पास आ गया डाया 0.16 मीटर्स का। अब हमने जो सेकंड पैरामीटर इसके अंदर फाइंड करना है वो था एक्सटेंशन इन द रॉड। हेयर एक्सटेंशन का क्या फार्मूला है कि यंग्स मॉड्यूलस जो है आपके पास वो गिवन है, E इज इक्वल्स टू P इंटू एल एरिया इंटू सिग्मा एल। तो आप इसके अंदर P1 पुट करेंगे क्योंकि आप जो है वो सिंगल रॉड के लिए कैलकुलेशंस कर। सो हेयर आपके पास P1 जो है यहाँ पे हमारे पास उसकी वैल्यू थी 1.75 इंटू 10 raised to power 6। द वैल्यू ऑफ लेंथ इज गिवन, एरिया इज गिवन, सिग्मा एल जो है वो हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है और ई की वैल्यू हमें नोन है। तो हम इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। उसने सिंप्लीफाई किया है कि P1 ओवर ए की जगह पे सिग्मा टी रख दिया है, उसकी वैल्यू जो है वो हमें नोन थी सिग्मा टी की 85। तो आप इसको बेशक सिंपल कर लें, दैट इज अप टू यू। आप इसके अंदर वो वाली सेम वैल्यूज भी पुट करेंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो दैट इज अप टू यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So the change in length that we have got here is 1.012 millimeters। तो almost approximately 1 mm की जो डिफ्लेक्शन है वो आपके इन रॉड्स में आएगी जब ये रॉड जो है 3.5 मेगा न्यूटन्स का जो लोड है उसको बेयर कर रहे हो। तो मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था, क्योंकि ये सारे आपके पास सॉलिड मटेरियल्स हैं, इनके अंदर जो एक्सटेंशन है वो बहुत मिनिमम होती है। दिस मच इज अमाउंट ऑफ द लोड 3.5 मेगा न्यूटन, और उसके नतीजे में जो चेंज आ रहा है रॉड के अंदर दैट इज ओनली 1 mm। ठीक है जी, तो ये वैल्यू इसी के राउंड अबाउट रहेगी। दैट इज योर असाइनमेंट। ये जो है आप नेक्स्ट क्लास के अंदर ये प्रॉब्लम जो है डिज़ाइन का ये आप सॉल्व करके आएंगे। इस केस में हो क्या रहा है कि अ रेक्टेंगुलर बेस प्लेट इज फिक्स्ड एट ईच ऑफ इट्स 4 कॉर्नर्स बाय अ 20 mm डायमीटर बोल्ट। तो एक आपके पास प्लेट है जो इसके चारों कोनों से आपने उसको 20 mm डायामीटर के एक बोल्ट से जो है वो फिक्स कर दिया। द प्लेट्स आर एट रेस्ट इन द वॉशर ऑफ 22 mm इंटरनल डायामीटर एंड 50 mm एक्सटर्नल डायामीटर। तो जो आपने वॉशर्स डाली हुई हैं इसके केस में, ये आपके अपर वॉशर है, ये लोअर वॉशर्स है, तो इनका ये क्योंकि अंदर से हॉलो होती हैं तो इंटरनल डाया इज 25 एंड एक्सटर्नल डाया इज 50 mm। Copper washers which are placed between the nut and the plate is of 20 mm internal diameter and 40 mm external diameter। तो इन दोनों का जो है वो डाई का भी डिफरेंस है, जो अंदर वाली है आपके पास उसका आपके पास 2244 है, और जो बाहर वाली है ये टॉप वाली आप कह लें उसका 2250 है। इफ द बेस प्लेट कैरीज अ लोड ऑफ, अब ये जो बेस प्लेट है आपकी ये वाली, इसके ऊपर जो टोटल लोड लग रहा है
120 kilonewtons, including self weight, which is equally distributed to the four corners. Calculate the stresses on the lower washer. ये जो आपके पास लोअर वॉशर है, इसके ऊपर जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं बिफोर द नट्स आर टाइटन्ड, उस वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना. What could be the stresses in the upper and the lower washer when the nuts are tightened so that they produce an extra tension of 5 kilonewton on each bolt? एक तो है कि आपके पास ये बोल्ट था, इसको आपने टाइट नहीं किया, आपने जस्ट वॉशर्स को रखा और इसको ऊपर से जस्ट आपने बंद कर दिया. अभी आपने इसको टाइट नहीं किया. उस केस में जो लोड की वैल्यू है दैट इज 120 किलो न्यूटन. लेकिन जब आपने इसको टाइट भी कर दिया, इसको टाइट करने के नतीजे में एक्स्ट्रा टेंशन प्रोड्यूस हुई है 5 की, उसके नतीजे में भी जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे आपने वो बताने हैं. तो इस डिज़ाइन के केस में आपने नट को टाइट करने से पहले जो बेस लोअर वॉशर के ऊपर स्ट्रेसेस की वैल्यू है और टाइट करने के बाद जो वैल्यू है वो दोनों फाइंड आउट करें. ठीक है. सो that was all from today's lecture, and this lecture was basically about the bearing stresses or the crushing stresses, and this is the assignment that is related with the today's lecture. आपने इसको प्रैक्टिस करना है और इसको सीखने की कोशिश करनी है. ये भी आपके डिज़ाइन के प्रॉब्लम्स का आप कह लें कि एक बेसिक पैरामीटर है, जहाँ स्टार्ट में जो है हमने मशीन कंपोनेंट्स से इसको स्टार्ट किया और फिर हम एक मशीन की तरफ आए, उसको हमने डिज़ाइन किया, एंड दैट इज़ द होम असाइनमेंट दैट यू शुड कैरी विद योर सेल्फ इन द नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास या फिज़िकल क्लास, जो भी आपके पास क्लास का मोड हुआ उसके अंदर जो है वो हम इस डिज़ाइन प्रॉब्लम को जो है वो डिस्कस करेंगे. आप इसको जो है वो घर से, दैट इज़ योर होम असाइनमेंट, आप इसको करके लाएंगे. और दोनों क्लासेस के लिए नेक्स्ट कमिंग जिस दिन भी आपका लेक्चर है, इधर इट्स ऑनलाइन और फिजिकल, ये आप सब लोग जो है वो सॉल्व करके लाएंगे नीट एंड क्लीन. ठीक है जी. सो थैंक यू सो मच. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द बेरिंग स्ट्रेसेस एंड द टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू इट. अल्लाह हाफिज़.